Then last time we did present tense. Simple present समझ आ गया सबको? Simple present, present continuous, perfect and perfect continuous. Simple present के uses 3 थे, continuous के भी 2-3 uses थे, वो बता दिए थे. Perfect में मैंने बताया था focuses on the impact of the past action, not on the past action but on the impact. So that's why you never use past time with present perfect tense. And then you can have an action over a period जिसमें आपका क्या होगा, since या for लगेगा. This is what we did last time, जिसमें perfect present perfect था और present perfect continuous tense था. ठीक है? Now let's move to next part, which is past tense. Did you revise what I told you last time? सारे uses याद है ना सबको? How they are used? Okay. Now past में I'll go one at a time. The first one is, which pen is this? I don't know, it doesn't. Simple past tense. You do something like a yellow. So giving the same. So is this visible to you? Visible है? So simple past tense, you have got first as या तो V2 होगा या फिर did followed by V1 होगा. That is the active voice that we did. ठीक है? अब वो directly go to uses. Come in please. Present perfect also talks about past actions, but the focus is on present. यहाँ पे they will be talking about past actions, but the focus will wholly and solely be on the action in the past time. So past time is important here. Present perfect, no past time, but past time is important here. So it gives you information or knowledge about the completion of past actions. So you can write down. It represents, or rather represents की जगह लिखिए it gives information about the completion of, one past action. मैंने deliberately यहां पे one लगाया, मैं इधर अभी लगा सकता था. I could have said completion of a past action. one इसलिए लगाया कि आपके दिमाग में रहे कि अगर पास्ट में एक एक्शन खत्म होने की इंफॉर्मेशन कोई देता है तो वो ये टेंस है. एक एक्शन, एक से ज्यादा का आगे बताइए. पहले एक एक्शन का दिमाग में डालना है. एक एक्शन के खत्म होने की इंफॉर्मेशन सिंपल पास्ट देता है. इसमें ब्रैकेट में लिखिए प्रेफरेबली with adverb of past time, or you can say with past time. They're all adverbs. Preferably with adverb of past time. मतलब past time वाला जो word है वो इसके साथ आता है. So I can have ample examples. Suppose we watched TV in the morning. So what am I using? We watched TV in the morning, which is V2. He ate an apple an hour ago, V2. So Mr. Sen went to Delhi yesterday. All these are talking about actions that are finished, and only one action that is finished in past, which is watched, ate, went, action finished in past. And what is the, see this, in the morning, an hour ago,
yesterday. तो इसमें आप टाइम दे रहे हो और एक एक्शन के खत्म होने की बात बता रहे हो. ठीक है, मोस्टली टाइम आता ही आता है, बट समटाइम्स यू मे नॉट नीड टाइम टू बी गिवन देयर. अगर मैं किसी से पूछूं ऐसे, वेयर फ्रॉम डिड यू कंप्लीट योर एजुकेशन, अब यहां पे वेन तो नहीं पूछ रहे ना, तो वेन ना भी तो, लेकिन फोकस फिर भी वेन पे रह गया. वेयर फ्रॉम डिड यू कंप्लीट योर एजुकेशन, डिड यू कंप्लीट योर एजुकेशन, दैट इज फॉर क्वेश्चन नेगेशन. तो द पर्सन कैन आंसर, I completed my education. Complete is V2. I completed my education from Pune, from Delhi, from Jammu. No time given, but चाहे टाइम ना भी दो फिर भी फोकस किधर है? पास्ट टाइम. Is this understood? So information about one action getting finished in the past focuses on that action and on the past time. एक एक्शन की खत्म होने की बात. That is first use. Write down the second use. Second use is past habits. Past habits. This is simple present tense is giving you present habitual actions. This is talking about past habits. है ना? अब ये वाला लिख लिया आप लोगों ने, ये 3 sentences. So suppose I say, now see, this is V2, this is V2, but ये दोनों यहाँ पे क्या बता रहे हैं? एक एक्शन की बात नहीं बता रहे, एक एक्शन खत्म होने की बात नहीं बता रहे, हैबिट बता रहे. अगर मैंने वर्ड यूजुअली लिखा या मैं लिखूंगा यूजुअली, हैबिचुअली, जनरली, रेगुलरली, तो यानी एक्शन was getting repeated in the past. अगर यूजुअली लिखा तो एक्शन was getting repeated, उसके साथ मैंने क्या लगाया? Carried. She usually carried an umbrella whenever she went out. That was her habit in the past. कि पास्ट में जब भी वो बाहर निकलती थी वो अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाती थी, है ना? What does that make this? A habitual action. It's not one action. He played a lot of football in the past. In the past उसने बहुत सारा फुटबॉल खेला है. तो what does that tell you? कि उसकी आदत होगी, एक टाइम पे तो lot of football cannot be played. So a lot of football and in the past tells you that played is acting as a habitual action. It's not one action. They generally kept pets a few years ago. They generally kept pets. So generally tells you उनकी आदत थी. So with these adverbs, usually, generally, habitually, frequently, regularly, आप V2 फॉर्म को यूज कर सकते हैं एज अ पास्ट हैबिट, या लॉट ऑफ यूज करके आप इसको पास्ट हैबिट बना सकते हैं. तो पास्ट हैबिट में V2 फॉर्म भी आएगी, V2 फॉर्म भी आएगी. दिस इज वन, एंड सेकेंड इज यूज टू फॉलोड बाय V1 फॉर्म. ये भी आती, दोनों फॉर्म्स आ सकते. इधर मैं ये भी कह सकता हूं, शी यूज टू कैरी एन अम्ब्रेला whenever she went out. She used to carry an umbrella whenever she went out. Are you getting this? और यहां पे मैं कह सकता हूं, he used to play a lot of football in the past. He used to play a lot of football in the past. So played भी आ सकता है, used to play भी आ सकता है. Are you getting? So only two uses of this. One is completion of one action in the past, and second is past habit. That is your simple past tense. Is that understood? Right. Shall I rub this? You have written this down? Okay. Then we move to next, which is, sorry, past continuous tense. So here we have was, were followed by V4, which is ing form. है ना? So present continuous tense tells you what?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स यू कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट, कि अभी जो हो रहा है. तो पास्ट विल टेल यू अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन पास्ट सिंपल, कि आप मॉर्निंग में क्या कर रहे थे. कोई पूछे कल रात को क्या कर रहे थे, कल 10 बजे क्या कर रहे थे, आज 1 घंटा पहले क्या कर रहे थे, तो आंसर क्या करोगे इस टेंस. सो अगर आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन इन द मॉर्निंग, अभी हमने लिखा आई वॉच्ड टेलीविजन इन द मॉर्निंग. वॉच्ड वॉज एक्शन फिनिश्ड. नाउ इफ यू से आई वॉज वॉचिंग, so was watching tells you that an action was going on at some time in the past. An action was going on. इसमें एक्शन नहीं, अभी नहीं चल रहा है. आप किसी टाइम पास्ट में बता रहे हो इस टाइम पे ये एक्शन चल रही थी. मैंने क्या बताया था, ये टेंस कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि एक्शन कब शुरू हुई या कब खत्म हुई. एक्शन मेरी खत्म हो चुकी है, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा था. मान लो आज 10 बजे आप 9 से 11 तक टीवी देख रहे थे, लेट्स से, या आज 8 से 9 तक, आप 8 से 10 तक टीवी देख रहे थे. 9 बजे क्या कर रहे थे, 8 से 10 तक टीवी देख रहे थे. 9 बजे क्या कर रहे थे, 9 बजे यू वर वॉचिंग टीवी, और इन द मॉर्निंग यू वर वॉचिंग टेलीविजन. We were what were you doing at 10 p.m. yesterday? So we were chatting over the phone with our friends at 10 p.m. yesterday. 9 बजे चैटिंग शुरू हुई, 10:30 बजे खत्म हुई. 10 बजे क्या कर रहे थे, बीच वाला टाइम है. 10 बजे चैटिंग हो रही थी. So something was going on at some point of time in the past. I'll give you a simple example. Today at this time, I am teaching English to my class. I am teaching English to my class. मान लो कल संडे नहीं थी, कल भी हमारी क्लास थी. तो yesterday at this time I was teaching, या मैं कह सकता हूं let's say Saturday को नहीं, Friday at this time I was teaching English to my class. What time does it start? So 10:30 स्टार्ट होती है, तो 11:45 11 बजे क्लास चल रही थी. Are you getting? I was teaching English to my class. That is what is your past continuous. Are you getting? That's the first use. So you can say to represent actions that were going on at some time in the past. To represent actions that were going on at some time in the past. So to represent actions that were going on at some time in the past. एक्शन चल रही थी. ये पहला यूज है इसका. अब दूसरा यूज जो इसका प्रैक्टिकल यूज है, प्रैक्टिकली ये कहां पे आता है वो लिखिए, तो सेकंड यूज. फर्स्ट यूज तो आपने इसका एग्जांपल आप खुद भी दे सकते हैं ना. यू कैन राइट डाउन द एग्जांपल्स योरसेल्फ. You were doing something, somebody was doing something at some point of time in the past. Now you can write second use. An action was going on. An action was going on. Was going on मतलब past में चल रही थी. An action was going on when a new action happened. When a new action happened. An action was going on when a new action happened. अब जो action was going on के ऊपर या कहीं पे लिखिए past continuous. Action was going on किससे प्रेजेंट करेंगे? Past continuous. और जो जहां पे मैंने कहा new action happened means simple past. So इसमें it's a combination of past continuous and simple past. अभी कैसे आ सकता है? Suppose so I was eating my breakfast when my friends arrived. There are two clauses.
कि एक एक्शन हो रही थी, उसके बीच में एक नई एक्शन हो गई। अब कौन सी एक्शन हो रही थी? I was eating. This is present past continuous. I was eating my breakfast when my friends arrived. Arrived is what? This is V2 form. I was having my breakfast when my friends arrived. मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, अभी कर ही रहा था कि बीच में फ्रेंड्स आ गए। या he was walking in the park when he suddenly slipped and fell down. What was happening? He was walking in the park. पार्क में चल रहा था, उसके बीच में क्या हुआ कि अचानक उसको स्लिप हो गई। स्लिप क्या है? सिंपल पास्ट। फेल डाउन क्या है? सिंपल पास्ट। वो एकदम से स्लिप होके नीचे गिर गया। सो व्हेन ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन, पुराना एक्शन मतलब जो कंटिन्यू एक्शन था वो क्या था? वाज वॉकिंग एंड उसके बीच में क्या हुआ? स्लिप्ड एंड फेल डाउन। अरे क्या नहीं, वही मैं आई एम कमिंग टू दैट। आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। देखिए while ऐसे भी हो सकता है, या इधर when लगाओ। कहने का मतलब है सपोज मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है, और अब मैंने लगाया while I was eating my breakfast, comma, और when I was eating my breakfast, my friends arrived. While he was walking or when he was walking in the park, comma, he suddenly slipped and fell down. तो ऐसे भी आ सकता है, लेकिन when आप दोनों जगह लगा सकते हो। when लगा सकते हो कंटिन्यूअस के साथ भी, यानी ये कंटिन्यूअस एक्शन है, और when लगा सकते हो पास्ट के साथ भी। लेकिन while आप सिर्फ किसके साथ लगाओगे? while जो है वो सिर्फ कंटिन्यूअस। while बताता कंटिन्यूटी। यू कैन नॉट यूज while here। मैं ऐसा नहीं कह सकता I was eating my breakfast while my friends arrived. Arrived is happened action, तो arrived के साथ में while नहीं लगा सकता। हाँ, अगर दो एक्शंस एट द सेम टाइम चल रही है तो while लग सकता है। I was eating my breakfast while watching television, तब आ सकता है। ING फॉर्म के साथ while आ सकता है। I was eating my breakfast while watching television का मतलब क्या हुआ? I was eating my breakfast while I was watching television. Are you getting? But I cannot say while my friends arrived, because arrived is या तो ऐसे भी लगा सकते हो, या ये नहीं लगाओगे तो यहाँ पे when लगा लो, यहाँ पे when लगा सकते हो। Are you getting this? या ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे she cut her hand while chopping vegetables. She cut her hand while chopping vegetables. अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं उसको पहले कह सकता हूँ कैसे? My friends arrived while I was eating breakfast or when I was eating my breakfast. ऐसा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हो। She cut her hand while she was chopping vegetables. या she cut her hand when she was chopping vegetables. या she was chopping vegetables when she cut her hand. So you can have all these. She was chopping vegetables when she cut her hand. An action was going on and a new action happened. I was reading newspaper when somebody knocked at the door. I was reading newspaper when somebody knocked at the door. Action हो रही थी, उसके बीच में क्या हुआ? A knock happened. ये समझ आया? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो एक एक्शन हो रही थी, उसके बीच में नई एक्शन हुई। when कहां पे लगाना है, while कैसे लगाना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी का? ये समझ आया सबको? This part is clear to everyone? when और while कैसे लगाना है आपने? So that is your second use of past continuous tense. Understood? Now we move to next tense, which is past perfect tense. Had followed by V3.
So had followed by V3, that is your past perfect tense. ठीक है. अच्छा देखिए, this can be similar to simple past. किससे? दोनों past की बात कर रहे हैं. Simple past में क्या बताया मैंने? एक एक्शन के खत्म होने की बात, प्रेफरेबली विद पास्ट टेंस. एक एक्शन के खत्म होने की बात, वो सिंपल पास्ट है. जहां पे अब दो या दो से ज्यादा एक्शंस पास्ट की खत्म हो रही है एक के बाद. पहले एक एक्शन हुई, इमीडिएटली बाद फिर दूसरी एक्शन पास्ट की हुई, दो हुई, या दो के बाद तीन भी हो सकती है. जब ऐसा आपने बताना है सीक्वेंस के एक एक्शन के बाद दूसरी एक्शन हुई, देन यू यूज पास्ट परफेक्ट. सो राइट डाउन यूजेस फर्स्ट. To represent two or more consecutive होता है one after the other. Consecutive important है. Consecutive means one after the other. To represent two or more consecutive past actions. To represent two or more consecutive past actions. ठीक है. इसके बाद देखिए, नीचे लिखिए ओल्ड पास्ट एक्शन. जो ओल्ड पास्ट एक्शन है, that takes past perfect tense, which is had followed by V3, and new past action या फिर एक्शंस, अगर दो से ज्यादा एक्शंस है, that takes simple past, which is V2. यानी आपके दो है तो पुराना वाला क्या लेगा? पास्ट परफेक्ट. और जो बाद में उसके बाद जो एक्शन हुई वो क्या लेगा? सिंपल पास्ट, यानी V2. अगर तीन हुए तो सबसे पुराना वाला पास्ट परफेक्ट, आगे के जितने भी नए होंगे वो सारे क्या लेंगे? सिंपल पास्ट. यानी पास्ट परफेक्ट इज ओनली टेकन बाय द ओल्डेस्ट एक्शन. बाकी सारे जितने एक्शन है, दे विल टेक सिंपल पास्ट. जैसे अभी मैंने पास्ट कंटिन्यूअस में क्या बताया? आई वॉज ईटिंग माई ब्रेकफास्ट व्हेन माई फ्रेंड्स अराइव्ड. मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसके बीच में फ्रेंड्स आ गए. अब देखिए, आई हैड अब यहां पे क्या बना? क्योंकि दो क्लॉजेस है तो कनेक्टर तो आएगा ही आएगा, वेन तो आएगा ही आएगा. वहां पे भी वेन था. जब आपका वहां पे लिख लेना, एक बात करना, पास्ट जो आपने कंटिन्यूस लिखा उसमें इसमें लिखना इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूस एंड सिंपल पास्ट. पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूस एंड सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन. यहां पे किसका कॉम्बिनेशन है? पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का. शॉर्ट पे लिख लेना, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन रहता है. ठीक है. I had eaten my breakfast when my friends arrived. यानी पुराना पहले क्या हुआ? पहले मैंने ब्रेकफास्ट खत्म किया, उसके बाद फ्रेंड्स आए. आई वॉज ईटिंग माई ब्रेकफास्ट में क्या था? कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसके बीच में फ्रेंड्स आ गए. इसमें क्या है? मैंने ब्रेकफास्ट खत्म किया, खत्म के बाद कंसेक्यूटिव, उसके इमीडिएटली बाद मेरे फ्रेंड्स आ गए. यू गेट द डिफरेंस? दोनों में सिंपल पास्ट हैज टू बी यूज्ड. ठीक है. अब यहां पे while नहीं आएगा, क्योंकि अब कोई भी एक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. डोंट यूज while हियर. यहां पे when ही आएगा. या तो आप लिखो when I had eaten my breakfast, my friends arrived, या लिखो I had eaten my breakfast when my friends arrived. वैसे भी आ सकता है. या लिखो I had eaten my breakfast before my friends arrived. when लगाओ या before लगाओ, कंसेक्यूटिव दोनों बता रहे हैं, एक के बाद एक. या the train had left the station before we reached. अब यहां पे फिर दो एक्शंस आ गई. पुरानी एक्शन क्या है? had left the station. नई एक्शन क्या है? reached V2. The train had left the station before we reached. ऊपर मैंने when लगाया, नीचे before लगाया. दोनों सिमिलर बता रहे, एक के बाद एक. या इसका उल्टा करते हैं, we reached after the train had left the station. We reached after the train had left the station. तो ट्रेन पहले पहुंची और हम
बाद में। इज इट अंडरस्टूड? अब कंसेक्यूटिव एक्शंस कैसे पता चलते हैं कि जब आपका कनेक्टर कंसेक्यूटिव कैसे पता लगता है? व्हेन यू हैव व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, इस तरह के कनेक्टर्स होंगे ना, ये आपको बता रहे कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक है। या वर्ड कंसेक्यूटिवली भी लिखा सकता है, कंसेक्यूटिवली, एक एक्शन नहीं फिर कंसेक्यूटिवली मींस इमीडिएटली उसके बाद, या इमीडिएटली, वो भी बता सकता है कि दो एक्शंस एक के बाद एक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस केस में आपने ये यूज करना है। इज दैट अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, इसमें खुद के एग्जांपल्स आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात याद रखना, जब आप व्हेन या बिफोर लगाते हो, सपोज आपने व्हेन लगाया या बिफोर लगाया, तो व्हेन या बिफोर से जो पहले वाली एक्शन होगी वो हमेशा पुरानी होगी, और व्हेन या बिफोर के बाद जो एक्शन होगी वो नहीं होगी। कई बार भूल जाता है या दिमाग काम नहीं करता, तो लोग ऐसे कहते हैं, आई एट माई ब्रेकफास्ट व्हेन माई फ्रेंड्स हैड अराइव्ड। आई एट माई ब्रेकफास्ट व्हेन माई फ्रेंड्स हैड अराइव्ड, दैट डजंट मेक एनी सेंस। व्हेन या बिफोर जब लगाओगे उससे पहले जो क्लॉज होगा उसकी एक्शन में हैड फॉर्म, और व्हेन या बिफोर के बाद जो क्लॉज होगा उसकी एक्शन में V2 फॉर्म। ये याद रहेगा। एक ये हो गया जब कंसेक्यूटिव है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कनेक्टर नहीं है, मैं कहूंगा आई मेट जॉन यस्टरडे, कौन सा टेंस है? आई मेट जॉन यस्टरडे, मेट V2 फॉर्म है ना, आई मेट जॉन यस्टरडे, आई हैड लास्ट सीन हिम डे बिफोर यस्टरडे। अब यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे बीच में कुछ नहीं है, कंसेक्यूटिव हो गए विदाउट कनेक्टर्स। आई मेट हिम यस्टरडे इज सिंपल पास्ट, उससे पहले वाला क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। आई हैड सीन हिम डे बिफोर यस्टरडे, तो हैड सीन हिम। समझ आ रहा है आप लोगों को? राइट। अच्छा, वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, कई बार खासकर इसमें और इसमें, ये दो तो हमेशा कंसेक्यूटिव देंगे, बिफोर या आफ्टर विल ऑलवेज टेल यू कंसेक्यूटिव एक्शंस, लेकिन कई बार व्हेन या एज सून एज कैन बी यूज्ड टू टॉक ऑफ टू एक्शंस which are kind of happening at the same time. If they are kind of happening at the same time, then you cannot use past perfect and simple past combination, then दोनों clauses में simple past आएगा। It's not consecutive में क्या है, एक एक्शन खत्म हुई फिर छोटा सा गैप है, छोटे से गैप के बाद दूसरी एक्शन हुई। अब अगर वो गैप है ही नहीं कि वो साथ साथ ही हो रहे हैं, तो दोनों में सिंपल पास्ट। I'll give you an example. दोनों V2 है। The students entered the classroom when the bell rang. यानी entry और ringing of bell is kind of happening at the same time. I cannot say one is before the other. मतलब bell ring हुई या ring हो ही रही थी, उसके मतलब ring हुई तो जैसे ही ring हुई, मैं ये नहीं कह सकता the students I cannot say the students had entered the classroom when the bell rang. That doesn't make sense. Or even I cannot say when the bell had rung, the students entered. मतलब ऐसा नहीं कि पहले एक एक्शन हो गई फिर गैप आया फिर दूसरी एक्शन हो गई, ये दोनों एक्शंस are happening at the same time. You get my point? जैसे as soon as है, something like I called him as soon as I heard the news. I called him as soon as I heard the news. मैं ऐसा नहीं कह सकता I called him as soon as I had heard the news. तो इसमें थोड़ा गैप आता है, ये बिल्कुल साथ के साथ आपके इवेंट्स आ रहे हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? सो इस केस में यू कैन हैव बोथ क्लॉजेस एज सिंपल पास्ट ऑल्सो, और यू मे हैव जैसे इधर किया वन आफ्टर द अदर, सिचुएशन डिपेंड करता है, वन आफ्टर द अदर, तब ये पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहां तक सब समझ आ रहा है सबको? अच्छा, ये तो है लाइक एक्शंस एंडिंग, एक एक्शन खत्म होती है फिर दूसरी एक्शन, तो एंडिंग ऑफ एक्शंस।
बट जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा, परफेक्ट टेंसेस में यू कैन हैव एन एक्शन ओवर अ पीरियड। ये पहला वाला लिख लिया आपने यूज, अब दूसरा लिखिए, सेकंड यूज लिखिए एक्शन, और खासकर इसमें लिखिए ओल्ड एक्शन, ओल्ड एक्शन ओवर अ पीरियड। ओल्ड एक्शन इज पास्ट परफेक्ट वाली, तो पास्ट परफेक्ट वाली एक्शन यू कैन हैव कंप्लीटेड ओवर अ पीरियड। ओवर अ पीरियड में उससे क्या लगाएंगे हम, फॉर लगाते, इधर हम फॉर लगाते, सिंस ही लगाते, क्योंकि सिंस हमेशा पास्ट से प्रेजेंट जाता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, इधर फॉर लगता है। ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूं, ये लिख लिया आप लोगों ने, दिस इज डन, ये मिटा दूं। ठीक है, देखिए सपोज आई से सेम थिंग, कंसेक्यूटिव एक्शंस, पुराना एक्शन नया एक्शन। पुराना एक्शन क्या है, इसको मैंने किस में डाला, ओवर अ पीरियड। सो से शी हैड वर्कड विद टाटा फॉर 3 years व्हेन शी गॉट अ बेटर जॉब। पुराना एक्शन हैड वर्कड, नया एक्शन when she got a better job. So she had worked with Tata for 3 years. यानी 3 साल तक उसने टाटा के साथ काम किया, काम करने के बाद छोड़ दिया, तो छोड़ने के जस्ट इमीडिएटली बाद, थोड़ी देर बाद उसको एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। Are you getting? So an action went for 3 years in the past, finished, and then a new action happened. तो पुराना action is over a period. Are you getting this? Yeah, let's take one more example. They had let's say, not worked. They had slept for, the animals had slept for 3 days. The animals had slept for 3 days when a sudden noise woke them up. When a sudden noise woke them up. They had slept for 3 days. 3 दिन तक सोए थे, फिर एक sudden noise हुई उससे, they woke up. So that sleep pattern was broken. Is that understood? One action and then the second action. Are you getting? अच्छा, इसी का एक्सटेंशन है, जैसे उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हमारा had been followed by V4, यानी जहां हमने यहां पे कहा हैड वर्क मतलब खत्म हो गया काम, यहां पे लास्ट पे दैट वर्क इज कंटिन्यूइंग। ये भी आप इधर ही यूज करेंगे व्हेन यू हैव टू और मोर कंसेक्यूटिव एक्शंस। ओल्ड एक्शन टेक्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड द न्यू एक्शन और एक्शंस टेक सिंपल पास्ट। सेम थिंग जो आपका पास्ट परफेक्ट में, यहां पे भी वही होगा, लेकिन सिर्फ ये कि एंड पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, एंड पॉइंट पे ये फिनिश्ड है। अभी बता रहा हूं, अभी यहां पे लगाते हैं हैड बीन वर्किंग। अब देखो
she had worked with Tata for 3 years. When she got a better job, she had been working with Tata for 3 years. What is the difference? दोनों consecutive है. She had worked with Tata for 3 years, काम करके खत्म करके उसके बाद उसको जॉब मिला. She had been working with Tata for 3 years. 3 साल तक काम किया, 3 साल बाद भी she was continuing working with Tata. 3 साल बाद भी she was continuing और काम करते करते उसको नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिला. यहां पे काम छोड़ने के बाद उसको नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिला. डिफरेंस समझ आए? वर्क मींस फिनिश्ड, उसके बाद नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिला. यहां पे वर्किंग मींस कंटिन्यूइंग, तो उसके बीच में उसको नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिला. इज इट अंडरस्टूड? राइट ऑन वन मोर एग्जांपल, यू विल गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ दिस. राइट ऑन वन मोर एग्जांपल. सो लिखिए द बेबी had cried, past perfect. The baby had cried, cried. The baby had cried. अब oblique slash डालिए, had been crying, oblique slash फिर had been crying. The baby had cried, oblique slash had been crying. अब इन दोनों का ब्रैकेट में भी रख सकते हैं. had cried और had been crying को ब्रैकेट में डाल दीजिए. For 20 minutes the baby had been crying for 20 minutes before it was given some milk. Before it was given some milk. This is the same example. जो मैंने यहाँ पे had worked, had been working, अब मैंने क्या had cried, had been crying. For 20 minutes before it was given some milk. Was given is simple past. Was given simple past है passive voice में. And had cried or had been crying is past perfect and past perfect continuous. This perfect continuous. अब लेते पहला वाला. The baby had cried for 20 minutes. यानी कि 20 मिनट तक बेबी ने क्राई किया, फिर चुप हो गया, उसके बाद मिल्क दिया गया, थोड़ी देर बाद मिल्क दिया गया. दूसरे केस में the baby had been crying for 20 minutes. 20 मिनट तक बेबी ने क्राई किया, उसके बाद भी बेबी क्राई कर रहा था और उसको मिल्क क्राई करते करते दिया गया. बेबी क्राई कर रहा था, उस टाइम पे मिल्क दिया गया. एक क्राई करने के बाद दिया गया, एक क्राई करते करते गया. एक काम छोड़ने के बाद काम मिला, एक काम करते करते नया काम मिला. दैट इज अ डिफरेंस. और दोनों में क्या है? कंसेक्यूटिव, वन एक्शन फॉलोइंग द अदर एक्शन. इज इट अंडरस्टूड? सो दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट्स कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. दैट इज योर पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट में क्या है? वन एक्शन फिनिशिंग, एक्शन खत्म होने की बात विद पास्ट टाइम गिवन या पास्ट हैबिट. पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है? पास्ट में क्या चल रहा था, या फिर एक एक्शन चल रही थी, उसके बीच में नई एक्शन हो गया. कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस एंड सिंपल पास्ट, V2 फॉर्म. पास्ट परफेक्ट में क्या है? दो या दो से ज्यादा कंसेक्यूटिव एक्शंस है. पास्ट परफेक्ट कभी भी एक एक्शन की बात नहीं करेगा. पास्ट परफेक्ट में हमेशा पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो या दो से ज्यादा एक्शंस होगी. पुरानी एक्शन क्या लेगा? पुरानी एक्शन पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और नई एक्शन सिंपल पास्ट या इंडेफिनिट. राइट? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या? एक एक्शन चल रही थी और उसके बाद वो चलते चलते नई एक्शन होगी. पास्ट परफेक्ट में एक एक्शन खत्म होने के बाद नई एक्शन होगी अगर पीरियोडिक एक्शन. इज दैट अंडरस्टूड? दैट पार्ट इज क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन. दैट इज अबाउट पास्ट. नाउ वी मूव टू फ्यूचर. तो पहला आया सिंपल फ्यूचर टेंस. तो फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर टेंस. ठीक है, तो इसमें आपका एक्टिव. ठीक है, अच्छा ये भी मैंने आपको बताया कि विल हम सारे पर्सन्स के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे आई, वी, यू, ही, शी सबके साथ. बट शल हम फ्यूचर में किसके साथ? सिर्फ आई या वी के साथ यूज करेंगे. शल सिर्फ आई या वी के साथ यूज करेंगे फ्यूचर टेंस के लिए. ठीक है, हाँ, शल के अपने यूजेस है, मॉडल, वो मॉडल्स में हम डिस्कस करेंगे. बाकी सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ कहां पे यूज करते हैं वो फ्यूचर वाला नहीं, वो मॉडल्स के अलग यूजेस है. सो अभी हम यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर टेंस पे फोकस करेंगे. ठीक है, अब इसके यूजेस क्या है? विल, शल, फॉर्म प्लस V1 क्या बताता है? तो लिखिए यूजेस स्ट्रेट फॉरवर्ड के. पहले तो ये फ्यूचर बताएगा. तो फर्स्ट यूज है फोर्थ कमिंग फ्यूचर
action. So it tells you about what? Forthcoming future events. Actions the events. Forthcoming future events. Forthcoming future events. अब वो क्या हो सकते हैं? कुछ भी. Anything that is आगे जो होने वाला है. The Prime Minister will inaugurate the new convention center on 2nd of next month. So the Prime Minister will inaugurate the new convention center on 2nd of next month. है ना? Forthcoming future actions इसके साथ लिखिए with future time given. With future time given. The Prime Minister will inaugurate the convention center on the 2nd of next month. ठीक है? या the Russian president will visit India in December. The Russian president will visit India in December. ठीक है? अब इसके लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं? We give preference to simple present, क्योंकि formal scheduling simple present preference है. But this is also correct. ये भी correct है, but you can also say Mr. Putin arrives, or the Russian president arrives in India in December. The Prime Minister unveils or inaugurates the new building on this month, which is formally scheduled. Or my friend will arrive to this place next week. My friend will arrive to this place next week. So it's talking about any future actions or events that are going to happen in foreseeable future. Are you getting? That is the first use. Ab second use. Second use is intention. Intention होता है, इसके साथ लिखिए, intention लिखिए decision making or to make a decision. Intention और decision making ये यूजुअली आपका किसमें होता है? फर्स्ट पर्सन के साथ, कि फर्स्ट पर्सन का इंटेंशन, इरादा करता है कोई, तो उसमें हम फर्स्ट पर्सन का डिसीजन मेकिंग कहते हैं. जैसे सपोज somebody says I will buy a new house और I shall buy a new house. दोनों आ सकते हैं ना, I will buy a new house और I shall buy a new house. तो ये क्या है? फर्स्ट पर्सन का इंटेंशन है. सी इंटेंशन का मतलब क्या है? अराइव एट अ डिसीजन. पहले उसके दिमाग में उथल पुथल थी, करूं, खरीदूं, नहीं खरीदूं, खरीदूं, नहीं खरीदूं, खरीदूं, नहीं खरीदूं. सोच लिया, खरीदूंगा. सोच के बोल लिया, आई शैल बाय अ न्यू हाउस. तो सोचने के बाद, डिसीजन करने के बाद जो आप इंफॉर्मेशन देते हो, दैट इज रिवील्ड इन दिस. दैट इज कॉल्ड इंटेंशन. कोई कहेगा आई विल नॉट वर्क टुडे, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो. You know, yeah, we shall go on a trip to Goa next week. So that is your intention. पहले आपका डिसीजन मेकिंग है, करना है, नहीं करना है, करना नहीं करना, फिर इरादा कर लिया या डिसीजन बना लिया, फिर आपने रिवील किया. So that is in first person. Intention is in first person. लिख लिया? That is the second use. Now write down the third use. Third use is events. Events that are definite or certain. Events that are definite or certain. Events that are definite or certain. ठीक है? Suppose हम कहेंगे something like she will turn 25 next week. 99.9% certain. Huh? The world will celebrate Christmas on 25th of December 25. Again, every year Christmas is celebrated, so this year also the world will celebrate Christmas. 99.9% certain. Yeah, the university will declare our results on 20th of next month. University ने date निकाली है, your results will be declared on 20th of next month. The university will declare the results of our examination on 20th of next month. So 99. Now again, university वाले केस में simple present tense works more. The university declares. It's a formal scheduling. Declares भी आ सकता है, will declare भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं. But declares is preferred. That's the 99.9% certain. किसी ने पहले ही निकाला हुआ तो उसके
मतलब डिले के कैंसिलेशन के चांसेस कम है. This is understood, this part. So 3 uses main. The first one is foreseeable future events, जो बिल्कुल forthcoming या foreseeable future events है. Second is intention, decision making, yes no में. After that you reveal. And third one is events that are nearly 100% certain. That is used with will, shall and be one. Is that understood? Clear? That is your future indefinite or simple future tense. Now we move to next one, which is future continuous tense. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या बताया कि एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन. पास्ट में क्या बताया? एक्शंस दैट वर गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या बताएंगे? एक्शंस दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर. So write on the first use. Write on the first use. To represent actions that will be going on at some time in the future. Represent actions that will be going on at some time in the future. मतलब इसमें simple example है. Right now I am teaching English to my class at this point of time. Yesterday at this time I was teaching English to my class. Tomorrow at this time I will be teaching. मतलब इस टाइम पे क्लास चल रही होगी. So tomorrow at this time I will be teaching English to my class. Are you getting this? So tomorrow at this time I will be teaching English to my class. कोई कहेगा don't call me tonight at let's say 8 p.m. because I'll be busy watching the match. So if the match starts at 7, so at 8 or 9 I'll be busy watching the match. The match will be going on. Is that understood? एक एक्शन जो आप श्योर हो कि फ्यूचर में चल रही होगी, not talking about when it will start or when it will end. किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चल रही होगी. That action is given by future continuous tense. मान लीजिए आप लोगों ने मूवी का प्रोग्राम बनाया. ठीक है यार, आज कौन सा डे है? आज है मंडे. वेडनेसडे को हम मूवी देखने जाएंगे, तो 10 बजे का शो है. तो ऑन वेडनेसडे दिस टाइम यू विल बी वॉचिंग अ मूवी इन द थिएटर. आप लोग बैठे होंगे और मूवी चल रही होगी. राइट? सो दैट इज लाइक दिस टेंस. दैट्स द फर्स्ट यूज. एक्शंस दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द. सेकंड लिखिए. Second use is same as present continuous, future plan to represent future plan or future arrangement. Future plan or future arrangement. Future plan or future arrangement. और ब्रैकेट में लिखिए with future time given. With future time given. So इसमें simple, जैसे मैंने last time भी कहा था, my sister is coming to India next week. So I can say my sister will be coming to India next week. So when you say will be coming and next week, my sister will be coming to India next week. I will be visiting my uncle on Saturday. I am visiting my uncle on Saturday. I will be visiting my uncle on Saturday. So I have a plan. I will be visiting my uncle on Saturday. We'll be having a grand celebration to mark this victory coming weekend or next weekend. We will be having a grand celebration, which is like a future plan. Are you getting? So what is the difference between my sister will come to India next week and my sister will be coming to India next week? My sister will come to India next week. My sister will be coming to India next week. Will come talks about intention. या उसका मतलब उसका intention आप लगा लो ऐसे कि decision make. My sister will come मतलब it's just revealing intention. It's just revealing intention. But my sister will be coming is उसके बाद उसने प्लान किया, टिकट भी निकाले, डेट भी फिक्स किया, everything is fixed.
तो वो एक स्टेप आगे है. विल बी कमिंग इज वन स्टेप फर्दर. विल कम इज जस्ट एट द डिसीजन मेकिंग लेवल. दैट इज द डिफरेंस. आर यू गेटिंग दिस? सो दैट इज योर future continuous. Next one. Future perfect tense. Will, shall, have, followed by V3. Active में ये ना, और passive में क्या होता है? Will, shall, have been and V3. दोनों में V3. Active passive भी याद रखना. तो will, shall, have V3. That is your future perfect. अच्छा, कंटिन्यूअस टेंसेस हमें क्या बताते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन. फ्यूचर ये परफेक्ट टेंसेस क्या बताते हैं हमें? फिनिशिंग ऑफ एक्शन. फिनिशिंग ऑफ एक्शन. प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा है एक्शन फिनिश इन द पास्ट व्हिच हैज एन इंपैक्ट ऑन प्रेजेंट. पास्ट परफेक्ट बता रहा है दो एक्शन के खत्म होने के बाद पुराना एक्शन और नया एक्शन. और फ्यूचर परफेक्ट बताता है हमें एक एक्शन जो चल रही है वो फ्यूचर में कब तक खत्म हो जाएगी. अभी चल रही है, फ्यूचर में कब तक खत्म होगी, किस टाइम तक खत्म होगी, दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो लिखिए आप. सो यूजेस में नंबर 1, to give the expected or estimated time of completion of an action in future. To give the expected or estimated time of completion of an action in future. मतलब मान लीजिए अभी कोई एक्शन चल रही है, यार ये कब तक मैं खत्म करूंगा, या कोई कब तक ये खत्म करेगा इस एक्शन को, वो टाइम देता है आपका फ्यूचर परफेक्ट. और इसमें आप बाय या टिल ये टाइम देने के काम आता है. बाय व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम इन फ्यूचर, अप्रोक्सीमेशन ऑफ टाइम. सपोज by the end of this month तो future time हो गया ना. So we will have completed, अभी हम कर रहे हैं, but we will have completed the project by the end of this month. So by tells you future time कब तक आप खत्म करो. Will and V1 form इसमें कभी नहीं आता because it's a estimation of time that is only given by will have come. You will not say we will complete this project by the end of this month, will be wrong. You'll have to say we will have completed. You have to give the completion of time of that project. Delhi government will have finished the whole metro project till next October, or before next October, or till next October, or by the end of next October. Are you getting? तो by हो, till हो, before हो, that gives you approximation of time in future कि कब तक खत्म होगा. Is that understood? Is that understood? That is the first use. अच्छा, second is वही same. Perfect tense है तो over a period. Action over a period. Action over a period. So action over period में क्या बताता है ये कि पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुई, चली, प्रेजेंट में चल रही, और फ्यूचर तक, पास्ट से फ्यूचर तक कितना टाइम हो जाएगा, पूरा स्पैन देता है पास्ट से फ्यूचर तक. देखिए, I'll give an example. So suppose I say in, अब आज है September, so I say in September 2026. In September 2026, I will have worked with Tata for 5 years. Now see. So 2026 आगे है. 2020 से आपने स्टार्ट कब किया वर्क करना? 2026 से 5 साल पीछे जाइए तो 21 में आपने स्टार्ट किया. 21 पास्ट में आपने स्टार्ट किया वर्क करना, पूरा पास्ट में चले. 25 में अभी वर्क कर रहे हो, और 26 में आपको
5 साल हो जाएंगे। कितना टाइम हो जाएगा? 5 साल। सो इट इज द होल पीरियड फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, पास्ट थ्रू प्रेजेंट टू फ्यूचर, पास्ट थ्रू प्रेजेंट टू फ्यूचर। आई विल हैव वर्कड विथ टाटा फॉर 5 years। ठीक है। अब अगर वर्क, तो वर्क मतलब उस टाइम तक, लेकिन अगर आपके इरादे तब भी काम करने के होंगे कि 5 साल होने के बाद भी आपने इंटेंशन किया कि मैंने 10 साल तक टाटा के साथ काम करना है, 5 साल के बाद भी आप कंटिन्यू करेंगे टाटा के साथ काम करना, तो इसका एक्सटेंशन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, विच इज will, shall, have, been, and V4 which is ing form. अब इधर लगाया will have worked, तो अगर मैं यहां पे लगाऊं इसकी जगह will have been working, अब दोनों में क्या फर्क है? In 2026 I will have worked and I will have been working. will have worked का मतलब है वहां तक, will have been working का मतलब है कि पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर तक कितने साल हो जाएंगे? 2026 5 साल हो जाएंगे, 5 साल, तब भी आई विल बी कंटिन्यूइंग, एंड पॉइंट पे आई विल बी कंटिन्यूइंग वर्किंग। 1 hour from now, 1 hour from now, my friend will have worked or will have been working continuously for 10 hours. 1 hour from now, my friend will have worked continuously for 10 hours or my friend will have been working continuously for 10 hours. तो मतलब क्या हुआ? अभी 9 घंटे हो गए, तो यहां पे साल था, यहां पे घंटा है, यहां पे साल था, यहां पे घंटे हो गए ना, 9 घंटे हो गए, तो 1 घंटा बाद 10 घंटे हो जाएंगे। सो माई फ्रेंड विल हैव वर्कड कि वहां तक 10 घंटे हो जाएंगे, माई फ्रेंड विल हैव बीन वर्किंग कि 10 घंटे बाद भी वो कंटिन्यूसली काम करता रहे। यू गेट द पॉइंट? So that is where you use future perfect or future perfect continuous tense with respect to action over a period, when जब आप for लगाएंगे। Is that understood? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? That is all about tenses. यही आपका टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या यूजेस है, पास्ट में कहां में किस में क्या यूजेस है, कौन सा टेंस कहां पे यूज करते हैं, फ्यूचर के अलग अलग टेंसेस के आपके क्या यूजेस है, बस इनको एक बार ध्यान में रखना है। Once you're doing your sentences, you have to remember where which tense is used. That part is clear, right? Okay. इसमें एक और बात आती है, ये याद रखना है, avoid V4 ing with verbs of senses. इस तरह के verbs of possession, इस तरह के verbs of mental activity, ऐसे करके
and so on and so forth. See, मेरे को जितने verbs याद है मैं वो लिख रहा हूँ, but you can have many other verbs जो मुझे भी याद नहीं है इसमें, जिसमें ing आपने avoid करना है. These are some of the main verbs जहाँ पे ing हम avoid करते हैं. मतलब ing मतलब continuous में, continuity में action हो रही है, फिर भी आप ing avoid करेंगे. See, simple as जैसे see, hear, smell, taste. अभी मान लो आप देख रहे हो कोई आपकी ओर आ रहा है, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे somebody is, you're seeing that somebody is coming towards you, walking towards you. इस टाइम पे हो रहा है, तो आपको तब तो ing लगाएंगे. But that is wrong. You cannot say I am seeing someone coming towards me. That would be wrong. Am seeing is गलत. आंखों का देखना cannot be ing. You have to say I see. You have to use simple tense here. I see someone coming towards me. अच्छा, आप अभी कोई एक अजीब सी आवाज सुन रहे हैं, तो I am hearing a strange sound. I am hearing, अभी सुन रहे हो, तो I am hearing a strange sound. But that would be wrong. You have to say I hear a strange sound. अच्छा, आपको जलने की स्मेल आ रही है, या कहीं पे कुछ जल रहा है, जलने की स्मेल आ रही है. So I am smelling something burning. Wrong. I smell something burning. You will not say I am smelling. आप अपना खाना टेस्ट कर रहे हो, खा रहे हो, टेस्ट कर रहे हो. I am tasting my food. No, I taste my food. Are you getting? So आंखों का देखना, कानों का सुनना, नाक का स्मेल लेना, जीभ का टेस्ट करना, उसमें आप ing अवॉइड करेंगे. किसमें? हाँ, अब देखो, that's a very good question. क्या होगा उसमें? अब अगर यहाँ पे लिखो, I have been seeing someone coming towards me, और I have been seeing something, मतलब ऐसा दे आंखों से, then having seen, उधर perfect में चेंज होगा. I have seen. अच्छा, I was seeing, वो past में चेंज होगा. I saw. Am seeing, see में चेंज होगा. Was seeing, saw में चेंज होगा. Have been seeing, have seen में चेंज होगा. Had been seeing, had seen में चेंज होगा. समझ आ रहा है? तो ing अवॉइड करना. Is that understood? अब यहां पे देखो, possession. The king is owning a palace. Wrong. The king owns a palace. They are belonging to that tribe. No, they belong to that tribe. My friend is possessing a very nice bike. My friend possesses a very nice bike. He's having a duplex flat in Mumbai. Having means possessing here. He has a duplex flat in Mumbai. But on the other hand, I'm having my breakfast is correct. Because having there means eating. Eating is correct. Eating can be used as ing form. But possessing cannot be used as ing form. So उस केस में अगर possessing possession वाला have use करना है तो have has. उधर having नहीं आएगा. Is it understood? Eating में having आएगा. Same way, I am understanding the problem. No, I understand this problem. We are comprehending something. No, I comprehend. We are believing in God. No, we believe in God. I am noticing something. No, you notice something. Conceiving, perceiving, ये सब नहीं आएगा. We are relying on them. We rely on them. The box is containing something. No, box contains something. It is consisting of something. No, it consists of something. It is, अच्छा, comprise के साथ off नहीं लगाना, याद रखना. Don't say, एक तो comprising नहीं आएगा. It is comprising of, वो भी गलत है. It is comprising something, वो भी गलत है. Just say comprise. This file comprises some important documents. Don't say this file comprises of. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ यूज नहीं करना. दैट इज अ कॉमन मिस्टेक पीपल मेक. ये और ये पूछते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये गलती करेंगे. कंप्राइज के साथ ऑफ लगाएंगे. इसको लिख लो, दिमाग में डाल दो. कंप्राइज के साथ कभी कोई ऑफ नहीं आता. कंसिस्ट के साथ ऑफ आएगा, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा. इज इट अंडरस्टूड? It comprises something. Comprises of something नहीं आएगा. This part is clear? Right? This is where you have to use these. Fine. I think we'll stop here today. ठीक है? आज वैसे भी will not be able to do the questions. Questions will take up tomorrow. So before taking questions, please go through it. पूरा रिवाइज करना. हर एक के यूजेस कौन सा. एक स्ट्रक्चर तो सबको पता ही है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया है, तो स्ट्रक्चर सबको पता है. स्ट्रक्चर और यूजेस वो दिमाग में होने चाहिए आपके, ताकि क्वेश्चन समझो. अच्छा, इसका ये टेंस लगाया हो तो कौन सा टेंस लगेगा, ये टेंस लगेगा. अच्छा, यहाँ पे ये गलती है तो यहाँ पे ऐसे मुझे यूज करना है.
एक बार यूजेस सारे पढ़ के आना, टुमारो विल टेक अप क्वेश्चंस, और अगर कोई एक्स्ट्रा रूल होगा वो मैं कल ही दे दूंगा, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, एनीथिंग ऑन योर माइंड, या कोई भी रूल जो समझाया, किसी में कोई डाउट है किसी का, एक काम करना, घर में पढ़ के आना, अगर कोई डाउट होगा तो कल पूछना मुझसे, सारे पढ़ के आना, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।